Uttarakhand, this is a horrific story we're reporting on of an accident that has taken place. Pictures on your screen of a bus fallen into a flooded river. The tragedy at the rain hit Rudraprayag district. Rescue operations are underway right now to save the passengers. The initial information suggests that 18 passengers were on the bus. Rescue operations are on in the flooded Alaknanda River at this point in time, as you can see in these pictures. Tragedy at the rain hit Rudraprayag district, where a bus has fallen into the Alaknanda River. 18 passengers are believed to be on board this bus. Rescue operations in the flooded Alaknanda River. Well, extreme weather conditions being reported from this area where rains are in fact flooding this region in Rudraprayag in Uttarakhand as well. Rivers have swelled up and this accident has taken place at a time when the rivers are at their full capacity and beyond. The bus accident that has taken place is in Uttarakhand. 18 passengers are believed to be on board the bus that has in fact plunged into a river. Rescue operations are currently underway. This is the Alaknanda River that you see on your screens at this point in time. Several people are missing, about 18 of them. This was an 18-seater bus that fell into the Alaknanda River is what we are learning. As per the Uttarakhand police, the bus went out of control, falling into the river. This is in the Rudraprayag district in the Gholsir area. Several people continue to remain missing after that accident where the bus fell into the river. Relief work or rescue work is being carried out. Members of the SDRF, which is the State Disaster Response Force, on your screens at this point in time. The government has said that they are in fact looking at the relief and rescue work on a war footing. Praveen Sembal is getting us more details on that story at this point in time. Praveen, इस समय ये खबर आ रही है कि एक टेम्पो बस है जो कि गिर गया है इस नदी में. क्या डिटेल शेयर कर सकते हैं? 18 लोग इस बस पे सवार थे. जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोलतिर की घटना है. यह एक यात्रियों से भरा हुआ वाहन था जिसमें कुल 18 लोग सवार बताए जा रहे हैं. जो पुलिस से हमारी बात हुई है, इसमें 9 लोग अभी तक मिसिंग चल रहे हैं. 3 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी जो घायल हैं उनका जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में उपचार चल रहा है. फिलहाल पूरी घटना पर प्रशासन की नजर है. घायलों को तुरंत निकाल दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया है. लगातार रेस्क्यू अभियान भी जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग नदी में मिसिंग हैं उनका फिलहाल बच पाना मुश्किल है क्योंकि अलकनंदा नदी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है. जी, कि 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू कर दिया गया है, वो कैसी कंडीशन में है इस समय, ये बता सकते हैं आप हमें? जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये यात्रियों का वाहन था यह सुबह आज 7 बजे रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए निकला था. इससे पहले इन यात्रियों ने तीनों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन कर दिए थे. इन्हें आज बद्रीनाथ दर्शनों के लिए जाना था, लेकिन सुबह 7:30 बजे के करीब यह वाहन अचानक से अनियंत्रित हो गया और सीधे अलकनंदा नदी में समा गया. तो इसमें अभी तक फिलहाल 10 लोग मिसिंग चल रहे हैं. 3 यात्रियों की यहाँ पर मौत हो चुकी है. जी, Praveen getting us those details at this point in time. Take a look at this report that was filed earlier. ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोलतिर के निकट आज एक दुखद हादसा हो गया. यहाँ पे यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिर गया. इस समय हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस स्थान से वह टेम्पो ट्रैवलर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा. बताया जा रहा है कि इस टेम्पो ट्रैवलर में चालक सहित कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं. 9 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 2 मृत हो गए हैं जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. फिलहाल जो टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया है उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है.
जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है। इस समय हम मौके पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हाँ, लोगों की भारी भीड़ है। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिनका रेस्क्यू होना था उनका रेस्क्यू कर दिया गया है और जो मिसिंग हैं उनकी अब नदी में ढूंढ खोज की जाएगी। फिलहाल अलकनंदा नदी का जल स्तर उफान पे है, नदी काफ़ी वेग रूप से बह रही है। ऐसे में जो नदी में मिसिंग चल रहे हैं उनका बच पाना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो लगातार पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है और बारिश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका असर अब उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है।